So solve this sum if you can. Abhi show the solution, see the proof of this. Baki sab. Okay, very good. It's very simple question here. 1 plus cot minus cosec, 1 plus tan plus sec. So I convert this everything into sin and cos. Sin cos में convert कर दिया तो क्या आएगा? Cot is cos upon sin, cosec is 1 upon sin, tan is sin upon cos, sec is 1 upon cos, like this. Then taking LCM पूरा, so sin theta is the LCM in this. You have to multiply with sin theta, so this becomes sin plus cos minus 1, like this. इधर cos theta LCM है तो cos plus sin plus 1 and then multiplying this 2. So अगर दोनों को multiply करेंगे तो ये आपका a minus b and a plus b form है. So we can say that is a square minus b square, and a square minus b square, then sin theta plus cos theta the whole square, sin square theta cos square theta 2 sin cos, sin square plus cos square is 1, so 1 minus 1 is cancelled, 2 sin. मैंने थोड़ा लंबा किया है, पता नहीं उन्होंने जो किया है वो थोड़ा शॉर्ट लग रहा है. Anyway, so I have done the next question. Through this on the screen. Good man, बराबर, अच्छी बात है. So I just given the next question on the screen. Abdullah, this is the 5th one. Question 15 is the 5th one. So try to solve that. Solve. Solution देख लेते हैं इसका. See that. Everybody see this is a tan cube है. Tan cube upon 1 plus tan square as it is plus cot cube upon 1 plus cot square. So just मतलब उन्होंने 1 plus tan square का उधर sec square लिखा था, इधर cosec लिखा था. That is also true. There is not wrong. But I have just मतलब this cos cube, so cancel हो जाएगा, बराबर है. As well as this sin cube के साथ एक पावर तो sin square का और एक sin का एक पावर cancel हो जाएगा. Fine. तो और sin square plus cos square होता है 1, so denominator में तो अभी कुछ बचने वाला नहीं है. See that क्या होगा next step में, जो था वही लिखा है जो मैंने बोला हो. This sin, this denominator वाला जो टर्म है उसमें से cos square और एक कट होके cos बचेगा, इधर sin square और कट होके sin बचेगा. So this is the next step. आई बात समझ में सबको? प्रीवियस स्टेप से देख लो, अगर कुछ दिक्कत है तो देखो प्रीवियस स्टेप. व्हाट इज द प्रीवियस स्टेप हियर? आई टोल्ड यू द cos square and this will get cancelled, sin square and this will get cancelled. समझे? तो आगे हेलो हेलो अच्छा, आवाज आ रहा है? यस सर. हाँ, बिकॉज मेरा शायद फोन का बैटरी चला गया इसलिए फोन वाला बंद हो गया. इधर आवाज आ रहा है ना? हाँ, तो एक कॉस एक कट होके ये बचा इधर. फाइन. तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है? नेक्स्ट स्टेप आई क्रॉस मल्टीप्लाई दिस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो sin will multiply with sin raised to 4 or sin cube, so that becomes sin raised to 4. Cos will multiply with cos raised to 3, that becomes cos raised to 4, and cos into sin जो नीचे लिखा है. समझा? नाउ ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला स्टेप क्या है? वो फॉर्मूला, व्हाट इज विच फॉर्मूला इज देयर, वो फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं, इधर मैं बोला अभी लिख देता हूँ, इसलिए लिखा नहीं था. a plus b the whole square. What is a plus b the whole square? a plus b the whole square क्या होता है? a plus b the whole square होता है a square plus b square, a square plus b square plus 2ab plus
2ab बराबर है। इट इज नहीं सर, माइनस टू ए बी होता है। अरे भाई a प्लस की बात कर रहा हूं, मैंने कुछ अभी किया नहीं। a प्लस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ना। ना ये 2ab जब इधर चला जाएगा, a 2ab जब इधर चला जाएगा तब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? a square plus b square equal to what? It is a plus b. It is a plus b the whole square. It is a plus b the whole square minus 2ab. ये वाला फॉर्मूला जो आपने इस्तेमाल किया है, दिस इज देयर, मतलब ये फॉर्मूला कहां से आया? तो इससे आया, ये बेसिक फॉर्मूला अपना। तो ये 2ab इधर निकल गए, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि a square plus b square is what? Equal to a plus b the whole square minus 2ab बराबर है। Now if I put a as sin square, अगर मैंने a के बदले डाला sin square, अगर मैंने a को लिखा a is equal to what? a is equal to sin square in this, a को लिखा मैंने sin square in this, sin square theta, and b को लिखा b is equal to what? b is equal to what? cos square theta। अगर मैंने a को लिखा sin square theta and b को लिखा cos square theta, तो ये sin square का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब दिस इज sin raised to 4। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो क्या आएगा? sin raised to 4 theta बराबर है। सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा? प्लस cos raised to 4 theta, that is cos raised to 4 theta बराबर है। एक में sin raised to 4, cos raised to 4। We are interested in the right hand side, so what is the right hand side here? It is sin square theta, it is sin square theta plus cos square theta plus cos square theta, sin square theta plus cos square theta the whole square minus 2ab, मतलब माइनस मुझे करना पड़ेगा 2 sin into cos, 2 sin theta into cos theta बराबर है। Look at that, what I have written in that only on that screen जो लेफ्ट हैंड साइड में अपना चल रहा है। तो मैंने sin 4 प्लस cos 4 के बदले यही लिखा है उधर। सी दैट, तो कैसा है मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बस दूसरा कुछ नहीं है। तो आपको ये बात समझ में आया रहेगा। सी दैट, राइट साइड का जो बात है वो देख लो, और जो मैंने इधर एक्सप्लेन किया वो देख लो। sin raised to 4 थीटा प्लस cos raised to 4 थीटा का वैल्यू आएगा sin square plus cos square the whole square minus 2 sin square cos square. This is come from here using this formula. Understood? Now sin square plus cos square is 1. Sin square plus cos square क्या होता है? 1 होता है। And then I separate the denominator. हमने denominator क्या किया? Separate किया। तो next step में के बाजू में किया है, तो इधर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? 1 अपॉन साइन इंटू कॉस माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। 1 अपॉन, इसको भी सेपरेट करो, 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस, और उधर एक साइन कॉस कट हो जाएगा एंड दैट्स द आंसर, दैट इज सेक थीटा कोसेक थीटा माइनस दिस, सो दैट्स द फाइनल आंसर फॉर यू, दैट इज आरएचएस बराबर है। थोड़ा सा ओवरलैप हो गया उधर, देख लो। आई बात समझ में सबको? प्लीज रिप्लाई मी दिस इन द चैट इफ यू हैव डाउट। नेक्स्ट ट्राई टू सॉल्व दिस। ये आपका 10th में, आपका 10th के टेक्स्ट बुक में है बहुत बार, आई थिंक आप लोग खुद कर लोगे। सो डू दिस, खुद से करो थोड़ा। सो हियर व्हाट टू डू इन दिस सम, इस सम में क्या करना है? सो पहला आपको कॉस को उधर लेके जाना होता है। इफ यू हैव डन दिस इन द 10th स्टैंडर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो इंस्टेड ऑफ प्रूविंग दिस 1 माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा को हमने
ए माइनस 1 कॉस थीटा को हमने राइट साइड में लेके गए और ये वाला जो स्टेप है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए. सो दैट इज टू प्रूव दैट 1/sec plus tan plus 1/sec minus tan is equals to 1/cos plus 1/cos. Now 1/cos plus 1/cos is 2/cos. That means 2 sec theta. तो आपको ये प्रूव करना है कि this is equal to what? 2 sec theta. That is to prove that. Now I will take the left hand side. अभी मैं left hand side लूंगा. So अभी left hand side लिया तो क्या है? 1/sec theta plus tan theta plus 1/sec theta minus tan theta. बराबर है? And then simply just cross multiplying this here, ये इधर जाएगा sec theta minus tan theta, ये साइड जाएगा sec theta plus tan theta, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा a plus b into a minus b, which is a square minus b square in the denominator, and minus tan and plus tan will get cancelled. So in the numerator minus tan and plus tan will get cancelled. So बचेगा क्या? sec theta plus sec theta, which is 2 sec theta, and sec square theta minus tan square theta क्या होता है? 1. So it is 2 sec theta, and that's a right hand side. Hence proof. आई बात समझ में? So please reply. Give me reply in the chat if you are done this. Any doubt? कुछ डाउट है तो बोलो. यस बोलो बच्चा. ओके, नो डाउट. डन. फाइन. गुड. इट्स वेरी इजी वन. बराबर है. ऑल क्लियर. मेक. फाइन. No doubt. So fine. So we should move to the next sum then. Next. Solve this. भी कुछ बातें आप खुद सॉल्व कर सकते हो. फटाफट सॉल्व करो. चलो. Do it fast. Sin theta upon 1 plus cos theta plus 1 plus cos upon sin. So this cross multiply करो. Cross multiply करने के बाद ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, then 1 plus cos into 1 plus cos, this become 1 plus cos theta the whole square. नीचे 1 plus cos into sin. So this is 1 plus cos का whole square, sin square plus cos square is 1. So next step में 1 plus 1 is 2, 2 common, 1 plus cos theta cancel. Simple है, बराबर. This is cancel this bracket. And the answer is 2 upon sin theta, that is 2 cosec theta. That's proof. बराबर है. तो next sum similar है, I think. शायद similar वही है. देख लो. So here the very simple बात है इसमें क्या है? Tan theta is equal upon sec theta minus 1. So multiplying the conjugate of this. तो conjugate क्या है? Sec theta plus 1 upon sec theta plus 1 का ऊपर नीचे multiply किया तो ये आएगा tan theta into sec theta plus tan theta. और नीचे क्या आ रहा है? सॉरी, मैंने उसको ब्रैकेट ओपन ब्रेक ही नहीं किया है, ऊपर का वैसे ही रखा है. सिर्फ नीचे को वैल्यू लिखो. sec theta minus 1 into sec theta plus 1 is sec square theta minus 1, and that is tan square theta, and tan square theta में से एक tan cut, so that is the right hand side. That's the right hand side. Hence proof. Next sum. Next is same. So तो सेम ही है. You have to multiply with the cosec का conjugate. cosec के conjugate से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो. सो नीचे आएगा cosec square theta minus 1. cosec square theta minus 1 होता है cot square. सो एक cot cut exactly same as the previous sum. कुछ भी अलग नहीं है. सो इसमें तो कुछ नया बात था ही नहीं. बराबर. इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सम. सो आप लोगों को तो आपने किया ही रहेगा. You have done this. The next
चलो आगे बढ़ते हैं। टू दिस, चलो सब लोग ये करो, सॉल्व दिस वन। एक दो सम रहेंगे, शायद 12 है मेरे मेरे के हिसाब से। sec a plus cos a into sec a minus cos a is equal to tan square a plus sin square a. This you have to prove. So everybody please solve this. जो अभी हर्ष ने किया है वैसे ही मैंने भी किया है। a plus b into a minus b, so it is a square minus b square straight away, and sec square is 1 plus tan square. sec square थीटा क्या होता है? 1 plus tan square थीटा बराबर है। तो ये 1 अभी cos के साथ जोड़ दो तो ये सीधा 1 minus cos square which is sin square, and that is RHS, hence proved. It's very simple. Understood? So like this you have to solve. Next, this is the बेटा जो मैंने किया हुआ है इधर वो देख लेते हैं। What I told you कि राइट साइड में cosec raised to 6 है, तो cosec raised to 6 मतलब cosec square का क्यूब, तो cosec square is 1 plus cot square, तो I have changed everything in cot, मैं सबको cot में चेंज कर रहा हूँ। cosec में किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, cosec में किया तो भी चलेगा, बट you have to use a cube formula, क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है इधर, वो आपने नहीं किया लगता है। तो इधर मैंने cosec square को लिखा है 1 plus cot square, fine, and then I just multiply this, then I multiply this, so this become 3 cot square theta plus 3 cot raised to 4 theta plus cot square. So now it is nothing but 1 plus cot square theta का whole cube. Is this correct? How? Because what is a plus b the whole cube? A plus b the whole cube. क्या होता है a plus b the whole cube? Anybody know the formula? What is a plus b the whole cube? It is a cube 3a square plus 3b square plus b cube. तो using that it is वो जो फॉर्मूला है वो 1 plus cot square का बराबर मैच हो रहा है ना? You can say that 1 plus cot square 3a b square plus b cube. This is our a plus b the whole cube का फॉर्मूला है। So अगर उसमें आपको 1 plus cot square का क्यूब लिखना है, 1 plus cot square, 1 plus cot square का थोड़ा सा माउस से अभी मेरा भी अभी ये आता नहीं है यार इधर। 1 plus cot square कॉट है, एक बार डिलीट किया तो सब डिलीट हो जाएगा, ऐसा भी लगता है। तो ये 1 plus cot square का क्यूब क्या होगा यूजिंग दिस फॉर्मूला? सो इट इज 1 plus 3 cot raised to 4 plus 3 cot square. सो एग्जैक्टली दिस इज देयर, ये सब इधर है वही है, बराबर ना? सो उसको ये सीधा हो गया 1 plus cot square का क्यूब विच इज cosec square, and cosec square का क्यूब मतलब cosec raised to 6, and that is the right hand side, hence proved. Understood? बोलो, समझा बच्चों? समझा कि नहीं? Reply me this in the chat. आपका मतलब ये एक्सरसाइज में लास्ट सम है, मिसलेनियस तो है, मिसलेनियस यू हैव टू ट्राई, आपके लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिस के लिए रखना चाहिए, तो मिसलेनियस है, यू कैन ट्राई दैट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। इसमें बहुत जन ने डाउट भी पूछा था मुझे व्हाट्सएप पे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन है यू हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। सो बेसिकली व्हाट इज द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, पहला मैं वो समझा देता हूं। व्हाट इज द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो? इफ a upon b is equal to c upon d, so there are so many formulas are there in the theorem of equal ratio. You can add this two, you can subtract this two, addition करने के बाद क्या आएगा? This ratio is always equal to a plus c. This ratio is equal to what? a plus c upon b plus d. बराबर है?
ऑल्सो अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया उसको, तो दिस रेशियो इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, a minus c upon b minus d, as well as there is a concept of componendo dividendo as well. तो a upon b अगर है is equal to c upon d is there. So what is the componendo and dividendo, ऐसा जो रूल है, तो आप उसके सिंगल सिंगल करना है तो आप उसको a plus b upon b is always equal to what, c plus d. So these all are the theorem of equal ratio concept here. बराबर है, ये सब है. अभी प्लस के बदले माइनस भी हो सकता है, दोनों साथ में भी हो सकते हैं. That is called as componendo dividendo. But whatever you do on the left, same you have to do on the right side for this. So these are the rules. Theorem of equal ratio अगर ये आपको अच्छे से मालूम है तो ये वाला सम इधर समझेगा. ये सम मैं इसमें कर देता हूँ बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और आपको अगर इस टाइप की क्वेश्चन चाहिए तो मिसलेनियस में बहुत है, 5-6 तो है, तो आप देख लो इधर. सो इधर सीधा सीधा फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, बिकॉज इसमें ये सम में आप याद रखो कि यू डोंट वांट टू सॉल्व इट फ्रॉम LHS RHS. इस पर्टिकुलर सम में आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से नहीं जाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, समझा. यू डोंट वांट टू गो विद LHS RHS. इसमें भेजा नहीं ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से आपको नहीं जाना है, तो इट इज डायरेक्टली गो टू दैट, अपना आइडेंटिटी से जाना है. आप उसको 1 प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, मतलब माइनस वाला जो है उससे करो, क्योंकि माइनस रहेगा तो a माइनस बी ए प्लस बी फैक्टर आता है. क्या आता है, a माइनस बी ए प्लस बी फैक्टर आता है. एंड देन a1 जो है, एक वन इधर इसके नीचे, मतलब एक ए वाला टर्म मैंने वो साइड लेके गया, सेक थीटा प्लस टैन थीटा ये साइड लेके गया, तो आप यू कैन राइट लाइक दिस. बराबर, आप उसको इस तरह लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन 1. तो अभी ये आने के बाद आपको इधर जो प्रूफ करना है उसके ऊपर ध्यान देना है. प्रूफ करने के लिए अगर आपने क्लियर कट देखा तो आप सब कॉम्बिनेशन टटोलो कि इस थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो के हिसाब से ये करना है कि ये करना है कि ये करना है कि ये करना है, सब आपको चेक करना चाहिए. थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें, बिकॉज थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है, बट आपको जो प्रूफ चाहिए उस प्रूफ के हिसाब से आई हैव डन दिस. मैंने क्या किया है, मैंने किया है बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d. Therefore, a minus b is upon a plus b is equal to c minus d upon c plus d. That is called as a componendo dividendo या dividendo componendo, जो कि उल्टा पहला माइनस ऊपर है, तो जो आप बोलते हो, जो आपको अच्छे से मालूम है क्या है, राइट. सो dividendo componendo किया तो इसमें क्या आएगा, what is there in this side, क्या होगा, एक साथ क्यों नहीं आया भाई, ठीक है शायद मैंने बाजू में किया रहेगा इधर आगे, दैट्स द रीजन. सो सेक थीटा माइनस टैन थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस टैन थीटा प्लस 1 एंड सेम इज ऑन द राइट हैंड साइड. बाद में क्या किया है, ये पूरा ब्रैकेट ओपन कर दिया है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा माइनस 1 इधर, नीचे वाला ब्रैकेट इधर ओपन कर दिया, मतलब ब्रैकेट निकाल दिया. बस ब्रैकेट निकालने के बाद जो आपको प्रूफ चाहिए, व्हाट वी वांट टू प्रूव, सी दैट आपको क्या प्रूफ करना है, ये वाला, और आपके पास क्या आ रहा है, तो उस हिसाब से माइनस साइन दोनों का प्रॉब्लम है, तो मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ द साइड एंड रीअरेंज इट. माइनस से मल्टीप्लाई करके अगर उसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, मतलब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो रीअरेंज किया. So that's the proof. That is a RHS. Hence proof. समझा? बोलो किसको डाउट है तो मुझे बताओ, because I have completed this exercise and the chapter as well. अभी आपको मिसलेनियस वाले सम प्रैक्टिस करने हैं. Anybody have doubt in this? भाई जरा पूछो. Reply me please. Okay. तो लास्ट टाइम वापस समझा ना, क्या बोल रहे हैं?
वापस तो सब लास्ट वाले वापस लास्ट स्टेप थे ना। वापस समझाओ लास्ट वाला स्टेप। हाँ यस। हाँ ठीक है, देखो यहाँ तक तो समझा ना आपको। मतलब इस तरह का जो सम है ना, जो सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा साइन थीटा माइनस ऐसे कुछ भी रहेंगे, तो आपको लेफ्ट राइट साइड से नहीं जाना है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनता है, तो आपको थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो से करना है। तो थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो के बहुत सारे कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिए, ए प्लस सी बी प्लस डी भी होता है, ए माइनस सी बी माइनस डी भी होता है, या कॉम्पिटेंट डिविडेंड भी होता है। यहाँ आने के बाद कौन सा आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो का, वो आपको अपना जो प्रूफ करना है उसे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इधर मुझे क्लियरली दिखा कि डिविडेंडो कंपेटेंट से हो रहा है, तो आई यूज डिविडेंडो कंपेटेंटो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? a upon b is equal to c upon d, then a minus b upon a plus b is equal to c minus d upon c plus d। तो ये माइनस और नीचे प्लस, like this, sec theta minus tan theta minus 1, sec theta minus tan theta plus 1. Same on the right hand side, 1 minus sec theta plus tan theta, 1 plus sec theta plus tan theta. Then next step में मैंने ब्रैकेट ओपन किया, बस ब्रैकेट निकाल दिया, और ब्रैकेट निकालने के बाद जो मुझे प्रूफ चाहिए वही प्रूफ है, बट सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, तो माइनस साइन दोनों में चाहिए हमको, तो मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, सेक थीटा और tan थीटा 1 प्लस हो जाएगा और सेक थीटा माइनस हो जाएगा, जो हमको इधर माइनस चाहिए। सेम इज हियर, ये दोनों प्लस चाहिए और 1 माइनस चाहिए। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू प्रूव। ये आपको प्रूव करना था एंड दैट्स द प्रूफ। समझा? कौन डाउट पूछा था भाई? ये आपको प्रूव करना था, समझा? हाँ, तो वो प्रूफ हो गया। मतलब थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि कंपेटेंट डिविडेंड होगा, वो आपको थोड़ा उतना दिमाग आपको लगाना है, बट मेथड स्टार्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट क्या है? LHS RHS नहीं है स्टार्ट, समझे? तो जरा उसके ऊपर आप ध्यान देंगे। फाइन, तो ट्रिगो का थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। So what we discussed in the trigo, that is the previous जो आपको 9-10 स्टैंडर्ड में आपने जो सब बेसिक वाला बात आपने पढ़ा था, वही बात हमने इधर 11 में रिवाइज किया था। Opposite upon hypotenuse, and this is all things which you already know. Cos is adjacent upon hypotenuse, tan is opposite upon adjacent. तो ये सब आपको पहले से मालूम है। And cosec, sec and cot is a reciprocal of sin, cos and tan respectively. तो ये बेसिक बातें आपको मालूम ही थी, बराबर। अभी इसके बाद आपको मैंने एक समझाया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल? स्टैंडर्ड सर्कल मतलब जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है, जिसका सेंटर क्या होता है? ओरिजिन पे होता है। दैट सेंटर इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड सर्कल। and जिसका रेडियस 1 होता है, रेडियस इज 1, इट इज कॉल्ड एज अ यूनिट सर्कल। सो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मतलब सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल टू 1। इफ यू कंसीडर एनी पॉइंट p xy ऑन दिस सर्कल, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल किधर भी लेगा पॉइंट, बट उसका जो एंगल है x के साथ, x एक्सिस के साथ, we assume as theta, the angle is assumed as theta। तो XY कोऑर्डिनेट अगर आपको मालूम है, तो ये डिस्टेंस होता है x, ये डिस्टेंस होता है y। परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑलवेज जिधर भी P इंटरसेक्ट होगा, वहां से आपको x एक्सिस पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा OPM। सो बाय यूजिंग दिस राइट एंगल ट्रायंगल, x upon 1 is cos theta and y upon 1 is sin theta। So this is the thing, दैट राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है, मैंने इधर शॉर्ट में लिखा ऐसा इधर, तो इट इज y upon 1 is sin, बिकॉज ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा हियर, ये वाला जो एंगल है वो क्या है? थीटा है। तो ऑलवेज y upon 1 is sin theta and x upon 1 is cos theta। So that is a definition. This is called as a by definition trigonometric function। जो मैंने आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन डाला था, बाकी जिनने फटाफट किया, ऐसा नहीं होता है। You have to, by definition, या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो you have to write everything, standard unit circle,
एंड व्हाट इज द एंगल मेड एंड हाउ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन जो आप ज्योमेट्री में करते हो, वैसा सब लिखना चाहिए. And then by using the definition, sin theta is a y coordinate, cos theta is x coordinate, tan theta is y upon x. That's it. बाकी का तो रेसिप्रोकल है. cosec is 1 upon sin, sec is 1 upon cos and cot is 1 upon tan. तो भले आपने cosec, sec और cot के बारे में ज्यादा नहीं लिखा तो चलेगा, but sin, cos, tan का आपको लिखना है. फाइन. तो जिधर भी वो कोऑर्डिनेट रहे, जो पॉइंट रहेगा, उस हिसाब से x और y का वैल्यू बदलेगा. सो नाउ x और y की वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होता है. इसका मतलब जो अभी हमने डेफिनेशन लिखा, sin इज y अपॉन 1, cos इज x अपॉन 1, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, देयरफॉर sin cos दोनों पॉजिटिव होंगे. sin और cos पॉजिटिव आएगा मतलब उसका रेसिप्रोकल cosec और sec भी पॉजिटिव होगा. cosec sec पॉजिटिव होगा मतलब ऑब्वियसली sin cos का जो कॉम्बिनेशन बनता है sin अपॉन cos, दैट इज tan. तो tan भी पॉजिटिव होगा, तो tan का रेसिप्रोकल cot भी पॉजिटिव होगा. तो अगर x और y दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है वो पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में. देयरफॉर ये a लिखा है. a मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो जो कोऑर्डिनेट होता है माइनस एंड प्लस, मतलब x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव. सो y कोऑर्डिनेट इज sin एंड x कोऑर्डिनेट इज cos. ये हमेशा याद रखो, इट इज नथिंग बट c, cos पहला, दूसरा वाला sin है. इट इज cs याद रखना है, cos sin. तो उस हिसाब से sin पॉजिटिव आया, cos नेगेटिव आया, तो tan क्या होगा? नेगेटिव होगा. मतलब इधर सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? साइन कोसेक पॉजिटिव. इधर दोनों नेगेटिव, कॉस एंड साइन बोथ आर नेगेटिव. कॉस साइन दोनों नेगेटिव आया तो tan क्या होगा? नेगेटिव अपॉन नेगेटिव इज पॉजिटिव, एंड देयरफॉर इन थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड cot बोथ आर पॉजिटिव. सिमिलरली इधर प्लस माइनस, मतलब x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव. x is cos theta, so cos theta is positive in 4, तो cos का रेसिप्रोकल होता है sec theta, and therefore we write ASTC in short. तो ASTC का मतलब समझा? ASTC मतलब all trigonometric ratios are positive in the first, sin is positive in the second, tan is positive in the third, and cos is positive in the fourth quadrant. Now what is the quadrant mean? So quadrant का मीनिंग इधर लिखा हुआ है. अगर एंगल यहां से रोटेट करेगा तो एंगल जो स्टैंडर्ड पोजीशन है, एक्स एक्सिस इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज, एक्स एक्सिस वाला जो पोजीशन है इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड पोजीशन, इट इज 0 डिग्री. सो 0 से यहां पहुंचेगा, दैट इज 90 डिग्री. तो 0 to 90 दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट. 90 से लेके 180, सो इट इज अ सेकंड क्वाड्रेंट. 180 से लेके दिस इज 270, so it is third quadrant. Then 270 से लेके 360, so it is fourth quadrant. वापस 360 से लेके 450, so this is the table which you have to remember here. 0, 90, 90, 180 like this. Fourth 1 2 3 4, then वापस 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. और इधर 90, 0, 90, 90, 180, 180, 270 like this. 9 का टेबल आपको अच्छे से याद रखना है और 0 डालना है. तो you can easily say that the angle lies in which quadrant. एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो आपको पता चलेगा इस कॉन्सेप्ट से. अगर वो क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन कॉस रहेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या है वो भी आप चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट. समझा? तो नेक्स्ट इज सम थे, तो सम तो हमको करने की जरूरत नहीं है. I don't want to do the sum. सम ही है इधर. ओके, यस. सो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझा? कुछ डाउट है इसमें? दिस इज वेरी सिंपल था. ASTC रूल, आई डोंट थिंक एनी डाउट. आखिर बाकी किसी को डाउट है तो बताओ, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट.
तो trigger 2 this I will explain and this is our table. जो टेबल के बेस पे हमने सम किए थे, इसमें तो सब टेबल के बेस सम है, तो हाँ ये वाला एक एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या क्वेश्चन है? Trigonometric function of angle in standard position whose terminal arm passes through xy। अगर जो हमने प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट किया था उसमें क्या था कि अगर कोई भी पॉइंट है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल पे, तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है cos थीटा और y कोऑर्डिनेट क्या होता है sin थीटा। लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल नहीं दिया है but the circle passes through xy, मतलब xy इज अ पॉइंट दिया है, अभी वो यूनिट नहीं है डिस्टेंस, तो दिस डिस्टेंस इससे r, ये डिस्टेंस क्या है r दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में 1 के बदले r आ गया, बस इतना ही फर्क है। तो अगर आपको पॉइंट दिया है xy, तो आप डायरेक्टली पहला r फाइंड करो। r square is x square plus y square, that is by Pythagoras theorem, and by using this particular triangle x upon r is cos theta and y upon r is sin theta. So you can find the all other trigonometric ratio once you know the r. अगर आपको r पता चला तो बाकी का आप आराम से करेंगे। प्रीवियस में क्या था, r is 1, therefore आपने डायरेक्टली y कोऑर्डिनेट is sin theta and x कोऑर्डिनेट is cos theta लिखा। इधर 1 के बदले आपको r लेके करना है। अगर क्वेश्चन क्या है कि टर्मिनल आर्म पासेस थ्रू x, y is not on the standard circle। स्टैंडर्ड सर्कल की बात नहीं है। अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो उसको इस तरह से करना है। प्लीज जो भी मैंने समझाया है आपको समझा क्या, प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स फर्स्ट, बिकॉज मैं वरना इधर बकबक करते रहूंगा और आपको नहीं समझा तो प्रॉब्लम। प्लीज रिप्लाई मी दिस इन द चैट। Shall I continue ना? Okay, fine, fine. So I'm going to continue this one. Okay, the next is again, so example इधर है। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन है कि what is the trigonometric function of angle in a standard position whose terminal arm passes through 3, -4। so सिर्फ इसमें क्या करना है आपको, पहला तो theta is the angle we assume it, and then you have to find r। r कैसे फाइंड करेंगे, देखो x is equal to 3 and y is equal to -4। इधर क्लियर कट कंपेयर करके पहला x निकालो, y निकालो, and then r is what, under root of x square plus y square, so it is 3 square plus this, so that is 5 square, मतलब r का वैल्यू 5 आ रहा है। तो r is 5, so cos theta is x upon r and sin theta is y upon r। so sin theta पहला लिखा है, बाद में cos theta and then tan theta, tan is y upon x। so this sin cos tan मिल गया, तो बाकी तो रेसिप्रोकल होता है, so that's very simple। रेसिप्रोकल cosec is 1 upon sin, रेसिप्रोकल करो, sec is 1 upon cos, cot is 1 upon tan, that's the way, very simple है। आई बात समझ में? तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, तो आपको ऑलरेडी जो हमने सम किए इतने सारे, तो इतने सारे क्वेश्चन में जो हमने देखा था ये आपके ट्रिगो आइडेंटिटीज है। एंड इस आइडेंटिटी के ऊपर शो दैट टू दैट वाले सम, और इस आइडेंटिटी से आपको अगर एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम है, किसी भी, मतलब साइन थीटा दिया है तो आप सब फाइंड कर सकते हो, tan थीटा दिया है तो आप सब फाइंड कर सकते हो, cot थीटा, कोई भी अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो बाकी 5 आप ढूंढ सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस फॉर्मूला। सपोज आपको साइन थीटा का वैल्यू दिया है और आपको बोला फाइंड cos, sec, cosec, cot, tan, तो वी कैन फाइंड बाय यूजिंग वन वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द 6। कैसे फाइंड करना है, उसके लिए 3 फॉर्मूले जरूरी है। अगर आपको साइन का वैल्यू दिया है तो आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज करोगे, कॉस का दिया है तो भी फर्स्ट आएगा, मतलब साइन कॉस दिया है तो विल यूज फर्स्ट फॉर्मूला, tan सेक दिया है तो वी विल यूज सेकंड वन, एंड कॉट और कोसेक में से कोई एक दिया है तो वी विल यूज थर्ड वन।
अभी इसमें दिक्कत किधर आती है कि स्क्वायर में आंसर आएगा, स्क्वायर में आंसर आने के बाद प्लस और माइनस, किसी का x square is equal to 4, then x equal to what? Always plus or minus. So plus or minus you have to decide by using ASTC rule. फर्स्ट प्लस है क्या माइनस है? फॉर एग्जांपल एग्जाम इधर मैं कर देता हूं, देखो अगर आपको इधर बोला है कि cos theta is given as 12/13 and then evaluate this, चलो इवेल्युएट करने को बोला है इधर, तो इवेल्युएट करने के लिए आपको क्या चाहिए? साइन की जरूरत है, इसमें तो सिर्फ साइन की जरूरत है, तो आसान क्वेश्चन है। Cos theta is 12/13, so we use the identity here, sin square theta plus cos square theta is 1, तो sin square theta का वैल्यू, मतलब आपको साइन ढूंढना है कैलकुलेट करके, तो कैलकुलेट करके आपका वैल्यू आता है 25/169, स्क्वायर रूट लिया तो इट इज प्लस माइनस 5/13। अगर आपने स्क्वायर रूट लिया तो व्हाट इज दिस? इट इज द प्लस माइनस 5/13। तो अभी प्लस लेना कि माइनस लेना, दैट डिपेंड ऑन दिस। ये जो है इधर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ये कंडीशन आपको प्लस माइनस के लिए दिया हुआ है। थीटा लाइज इन व्हाट? 0 to 90, π/2 मतलब 90, पाई मतलब 180 होता है, तो 180/2 is 90 डिग्री। 0 to 90 means it is the first quadrant, and first quadrant में सारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, and therefore sin theta is 5/13. That's the correct। तो माइनस आपको नहीं लेना है, क्या लेना है? 5/13, एंड साइन का वैल्यू आप जो आपको प्रूफ करना है उसमें सब्स्टिट्यूट करो। sin theta is 5/13, cos theta is given, that's it। simplify this and find the answer। तो जो भी है वो कैलकुलेशन से आपको आंसर ढूंढना है, तो आंसर इज दिस -119/120। आई बात समझ में? मतलब ये तो साइन, अभी साइन और कॉस आने के बाद टैन आता है, फिर उसके बाद टैन, साइन कॉस टैन मिला तो कोसेक सेक और कॉट सब मिलता है। मतलब एक रेशियो अगर दिया है तो आप रिमेनिंग सारे रेशियो फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। ट्रिगो आइडेंटिटी से बाकी आप रिमेनिंग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जिधर जैसा मैंने आपको बोला कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि हमेशा देयर आर टू वैल्यूज आते हैं, प्लस एंड माइनस। सिर्फ प्लस लेके आगे नहीं बढ़ना है, प्लस और माइनस दोनों पॉसिबिलिटी रहेगा, बट जो भी क्वाड्रेंट दिया है उस क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको साइन चूज करना है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव फॉर ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट है तो टैन एंड कॉट पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है तो कॉस एंड सेक पॉजिटिव। फाइन। So that is the concept of this particular here. इसमें बात sum ही है, it is also sum, so all are sums here, so fine। So even there is also sum, I think sum है तो हाँ, this is sum, so I don't want to do that, so we'll move to the next third lecture of this ट्रिगो का, जो थर्ड लेक्चर में बात किया था। सेम आइडेंटिटी को आगे बढ़ावा दिया है, उसके ऊपर के सारे सम किए हुए हैं। जैसे एलिमिनेशन ऑफ थीटा वाला एक कॉन्सेप्ट देख लो। So here in this case कभी-कभी क्वेश्चन में ऐसा आता है, this elimination of theta also the based on this one only। elimination of theta क्या है? elimination of theta is there, तो elimination of theta भी आपको आइडेंटिटी से ही करना है। अगर आपको इधर sec थीटा और tan थीटा, इस पर्टिकुलर सम में sec और tan का जोड़ी दिया है, तो आइडेंटिटी में जोड़ी है, क्या क्या जोड़ी है? साइन और कॉस की जोड़ी है। किसकी जोड़ी है? साइन और कॉस की जोड़ी है, सेक और टैन की जोड़ी है, और कोसेक और कॉट की जोड़ी है आइडेंटिटी में। तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा एलिमिनेट ऑफ थीटा में, वो जोड़ी में ही रहेगा, देयर इज नो डाउट इन दैट, वो जोड़ी में ही रहेगा। अगर आपको एलिमिनेट थीटा करना है तो क्वेश्चन में साइन कॉस होगा, सेक टैन होगा या कोसेक कॉट होगा। अगर इधर sec और tan दिया है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा। या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा? इट इज x/3।
अगर आपको ये दिया है तो पहला sec थीटा का वैल्यू निकालो, then tan थीटा का वैल्यू निकालो. Tan थीटा is what? Y upon 4. So find the sec theta and tan theta and then substitute in the identity. That's it. तो आपका जो भी इक्वेशन आ रहा है उसमें थीटा नहीं है, आपको एलिमिनेट थीटा का मतलब थीटा एक्सप्रेशन से निकालो. थीटा को निकाल दिया कि जो भी एक्सप्रेशन बनता है दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज अ, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन विदाउट थीटा. आपको सिर्फ थीटा को रिमूव करने को बोला है इधर. आई बात समझ में? बाद में इसमें ये वाला कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है. Yes, so the next is this one. उसके बाद ये वाले हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, that is polar coordinate system and कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. आई थिंक बट ये पोलर तो मैंने एक लेक्चर में पूरा वापस से पढ़ाया था आपको, तो वो डायरेक्टली फोर्थ लेक्चर, दैट इज द लास्ट वन. फोर्थ लेक्चर में ही पढ़ाया हुआ है. किधर गया? Yeah, so this one, the polar concept वाला अभी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं. This is the last one and then we'll conclude the lecture. तो polar concept में क्या था? पोलर और कार्टेशियन का कॉन्सेप्ट का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया था कि अगर ये एक प्रकार के कोई भी पॉइंट है ना, उसका ग्राफ पे एड्रेस है, तो हमको एड्रेस बताने के लिए दो तरीका हो सकता है. एक कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ कितनी दूरी पे है और वाई एक्सिस के साथ कितने दूरी पे है, दैट इज कॉल्ड एज अ कार्टेशियन सिस्टम. जो अपन नॉर्मल हम कोऑर्डिनेट जो देते हैं, कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है कि वो एक्स से इतने दूरी पे है, वाई से इतने दूरी पे है. मतलब अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे इधर अपन, सब कंसीडर द कोऑर्डिनेट हियर इज एक्स एंड वाई. तो एक्स एंड वाई का मीनिंग क्या है? दिस डिस्टेंस इज एक्स, दैट इज द पॉइंट पी इज at distance x from y axis and distance y from ये y coordinate मतलब है y से इतना दूरी पे है, y जो भी उसका y का वैल्यू रहेगा उतने यूनिट दूरी पे है. दैट इज अ मीनिंग. अभी दोनों पॉजिटिव अगर है उसका क्लियरली मीनिंग है दे लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. प्लस माइनस इज ऑल डिपेंड ऑन द क्वाड्रेंट है, एज वेल एज साइन कन्वेंशन के हिसाब से दैट वी नो that right side on the x axis is always positive, left hand side is always negative. y axis की बात करेंगे तो y ऊपर वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव होता है और नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो दैट इज द साइन कन्वेंशन. प्लस माइनस साइन इज गिवन फॉर द कन्वेंशन बिकॉज दैट गिव यू द डायरेक्शन. तो कोई भी पॉइंट अगर आप प्लॉट करते हो तो ये बात है. एंड देन द पोलर सिस्टम, तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या है? अगर जैसा एक्स वाई को हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोला, वैसे ही उधर आर थीटा होता है. तो आर थीटा इज कॉल्ड एज अ पोलर कोऑर्डिनेट. नाउ व्हाट इज आर? बेसिकली आर थीटा को हम पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं. जैसे मैंने आपको क्या बोला कि पॉइंट को लोकेट करने के लिए उसका एक्स के साथ का डिस्टेंस और वाई के साथ का डिस्टेंस अगर पता है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर आपको पता है तो आप पॉइंट लोकेट कर सकते हो. उसी तरह अगर आपको किसी पॉइंट का ओरिजिन के साथ का डिस्टेंस मालूम है और उसका एक्स एक्सिस के साथ का एंगल मालूम है, देन आल्सो वी कैन लोकेट द पॉइंट. तो भी हम पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड एज अ आर थीटा. उसको हम बोलेंगे आर थीटा, वेयर आर इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्री फ्रॉम द ओरिजिन एंड थीटा इज द एंगल. थीटा इज व्हाट? Angle made by OP. OP मतलब P is a point and O is origin there. So OP with positive direction of x-axis. Whatever the angle is, that is theta. Obviously, we always start from positive x-axis as 0 and we move to the anti-clockwise is positive and clockwise जाओगे तो negative है. तो यहाँ से शुरू होता है 0, 5, 10, 20, 30, 40 like this. जब आप इधर पहुंचोगे इट इज 90, देन 100, देन 110 लाइक दिस नीचे आएगा 180,
देन 180 के आगे 190 एक्सेट्रा, इधर आएगा 270, देन 280 एंड दिस, वापस इधर 360, तो वापस से घूमते रहेगा 450, 540 लाइक दिस. सो इज मूविंग ओनली, बिकॉज मेजरमेंट ऑफ एंगल इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ रोटेशन. तो कितना घूमेगा वो इन्फिनिटी तक भी जा सकता है, तो उसका अपने को टेंशन नहीं है. जो वॉट एवर इज देयर, दैट पर्टिकुलर एंगल इज थीटा. वो दैट पर्टिकुलर एंगल को हम बोलेंगे थीटा. एंड आर मतलब ओपी, द लेंथ ऑफ ओपी, दैट इज डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन. सो ओपी ढूंढने के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज अभी पहला तो दोनों में रिलेशन देख लेते. क्या रिलेशन आएगा फ्रॉम दिस फिगर, क्लियर कट. अगर हमने सब एक साथ डाल दिया, ये x है, ये y है, ये डिस्टेंस आपका r है, ये थीटा है. तो इन द राइट एंगल ट्रायंगल, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस इज cos थीटा, अपोजिट अपॉन hypotenuse is sin theta. So that is x upon r is cos, y upon r is sin. So that is x coordinate. Basically x coordinate is r into cos theta होता है, and y coordinate is always r into sin theta होता है. That's the relation. अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया है x और y, तो आप उसको मतलब कार्टेशियन फॉर्म दिया है तो आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. पोलर फॉर्म दिया है तो आप उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट. फाइन. तो उसमें आपको पहला r का वैल्यू ढूंढना है. व्हाट इज r देन, बाय यूजिंग पाइथागोरस. उसमें r का वैल्यू नहीं लिखा है. व्हाट इज r? r क्या होगा पाइथागोरस के हिसाब से? r शुड बी इक्वल टू व्हाट? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस, तो r ढूंढने में कोई दिक्कत होता ही नहीं है. इट इज सिंपली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट्स r. तो r के लिए, बिकॉज r इज डिस्टेंस, सो इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो ये लेंथ है, रेडियस मतलब रेडियस भी बोल सकते हैं चाहे तो आप सर्कल के हिसाब से, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा. बट थीटा फाइंड करने के लिए आपको कौन से क्वाड्रेंट में है उस हिसाब से वैल्यू बदलेगा. अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो 0 to 90, दैट इज अ एक्यूट एंगल है. अगर सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो उसका वैल्यू 90 to 180 आना चाहिए. थर्ड में गया तो 180 से 270, एंड फोर्थ में गया तो 270 से लेके 360. एंड दिस के लिए आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज आपके पास x और y ही मालूम है, आपको थीटा बीटा कुछ दिया नहीं. क्या दिया है? x और y दिया है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो दिस एंगल इज योर, मतलब ये जो भी एंगल है दैट इज एंगल विद दिस x एक्सिस. सो मैंने उसको अल्फा अज्यूम किया है, दैट इज एंगल. ये वाला ट्रायंगल के हिसाब से जो एंगल है ना वो अल्फा अज्यूम किया है. बट अल्फा इज नथिंग बट एंगल विद पॉजिटिव x एक्सिस, एंड एंगल विद पॉजिटिव x एक्सिस इज कंसीडर्ड एज थीटा. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा दोनों सेम होते हैं, मतलब थीटा का वैल्यू होता है tan इनवर्स ऑफ y बाय x. थीटा का वैल्यू क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ y बाय x. बट वही बात अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये थीटा हो गया इधर, ये थीटा है. अल्फा इज सेम, ये वाला एंगल मतलब tan इनवर्स ऑफ y बाय x, दिस इज अल्फा. फाइन. अभी थीटा का वैल्यू हमको ढूंढना है, तो व्हाट इज थीटा? क्लियर कट फ्रॉम दिस फिगर, थीटा प्लस अल्फा इज 180 दोनों का, बिकॉज इज स्ट्रेट एंगल है. तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा? पाई माइनस अल्फा. थीटा का वैल्यू क्या आएगा? पाई माइनस अल्फा मींस पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x. दैट इज द फॉर्मूला फॉर सेकंड क्वाड्रेंट. अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो अल्फा इधर आएगा. व्हाट इज थीटा देन? थीटा ये पूरा एंगल है, तो पूरा एंगल, ये पूरा नहीं, यहां तक, जो लाइन तक, यहां तक, मतलब ये जो लाइन है इस लाइन तक, इस लाइन तक इधर स्टॉप है, एक्सिस तक नहीं. तो ये थीटा है. तो व्हाट इज थीटा हियर? इट इज पाई प्लस अल्फा. इट इज पाई प्लस अल्फा. क्लियर कट फ्रॉम द डायग्राम. सो इट इज पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाय x. एंड सेम बात अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वो ये अल्फा इधर आएगा, मतलब 2 पाई पूरा 360 माइनस अल्फा बोलो या 2 पाई माइनस अल्फा बोलो, या डायरेक्टली अगर उसको शॉर्टकट में रिवर्स इसमें जाओगे, क्लॉकवाइज जाओगे, तो इट इज
माइनस बोल सकते हो. So this is a formula which you have to remember. If P lies in the first quadrant, theta is straight away tan inverse of y by x. If it lies in the second quadrant, it's pi minus tan inverse of y by x. थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा तो पाई प्लस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा तो 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x. ये चारों अगर ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखोगे तो थीटा तो मिल गया, और r का तो एक ही फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. सो दैट्स वे अगर आपको कोई भी एक सम कर रहा हो इधर इसमें तो उल्टा दिया है कि अगर आपको r और थीटा दिया है, हाउ टू फाइंड x. तो इसमें क्या है, r और थीटा दिया है, r इज गिवन एज 3 एंड थीटा इज गिवन एज 90 डिग्री. तो x क्या होता है, x इज r cos थीटा, x क्या होता है r cos थीटा, एंड y क्या होता है r sin थीटा. वैल्यू डालो, r cos ऑफ r का वैल्यू कितना है 3 इंटू cos 90 0 होता है, y r sin थीटा 3 इंटू sin 90 इज 1, सो इट इज 3. मतलब x इज इक्वल टू 0. इसका आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू व्हाट 0 and y is equal to 3. So its Cartesian coordinate for 390 degree is 0, 3. 390 का जो Cartesian coordinate है वो क्या आएगा 0, 3 like this. समझा. अभी इसका भी वैसा ही है तो वो नहीं करता हूं. एक और सम उल्टा लेता हूं, रिवर्स वाला. Find the polar coordinate for this 1 upon root 3. So 1 upon root 3 का आपको पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. प्रीवियस केस में उल्टा था, आपको r थीटा दिया था, आपको xy ढूंढना था. इसमें xy दिया है, आपको r और थीटा ढूंढना है. जब r और थीटा ढूंढना रहता है तब आपको क्वाड्रेंट निश्चित करना बहुत जरूरी है. You have to first of all fix in which quadrant that point lies. सो इधर दोनों पॉजिटिव आए, मतलब P लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला आएगा. R के लिए फॉर्मूला तीनों में सेम है, तो पहला R ढूंढो. R मिला आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज रूट 4, इट इज 2, एंड देन थीटा ढूंढो. तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इनवर्स ऑफ y बाय x, so y is रूट 3 and x is 1, so tan इनवर्स ऑफ रूट 3, what is that, tan 60 is रूट 3 होता है. So it is 60 degree. Pi by 3 is 60 degree, and therefore the polar coordinate is 2, 60. Its r is 2 and theta is 60 degree. आई बात समझ में? Please reply me this in the chat box. If you want to solve more sum of this, I will continue. There's no problem. सर बोलो बेटा. सर एक और सम करो ना, नहीं जम रहा. कौन कौन बोल रहा है बेटा? स्नेहा जी. ओके, ये वाला पार्ट ना, सिर्फ कौन सा वाला, पोलर टू कार्टेशियन. अरे कार्टेशियन. पोलर. हाँ, एक और करते हैं. बराबर, मैं वैसे करने ही वाला था, सिर्फ आपका रिस्पॉन्स देख रहा था कि आपको आप क्या कर रहे हैं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. सी दिस -1 दिया है, तो -1 दिया है, तो पहला आपको मैंने क्या बोला, पहला x और y का वैल्यू फिक्स कर दो. दैट इज x और y का वैल्यू फिक्स हो गया. अभी x और y का वैल्यू फिक्स होने के बाद क्वाड्रेंट फिक्स कर दो. दोनों नेगेटिव मींस विच क्वाड्रेंट, बोथ नेगेटिव मींस इट इज थर्ड क्वाड्रेंट. बराबर है. अभी वो तो आपको अच्छे से याद ही रखना है, वो पहली बात तो अच्छे से याद रख देना है. कौन सा क्वाड्रेंट के बारे में जो बात है, क्वाड्रेंट के बारे में, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ आर प्लस प्लस, राइट. सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, मतलब x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस. सो दैट इज देयर. पहला x है वो मत बोलो, अपने मर्जी से साइन नहीं हम लेते हैं. x इज ऑलवेज फर्स्ट, तो इस हिसाब से दोनों नेगेटिव आए, मतलब दिस इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया. आई बात समझ में? तो पहला r ढूंढ के रखो. r का वैल्यू तो एनी हाउ इट इज सेम फॉर ऑल, सबके लिए r का वैल्यू सेम है, बट थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आएगा. सो आपको मैं ये वाला शीट आपको अच्छे से याद रखना है.
देखो कौन से वाला, सी दिस किधर गया है, ये वाला, दिस वन। ये वाला आपको अच्छे से याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज ऑलवेज दिस। ये मॉडुलस साइन है, मतलब हम जो एक्स और वाई के वैल्यू हमको उसका लेना देना नहीं है, मतलब वो प्लस ही होने वाला है, दिस मॉडुलस साइन। सो tan इनवर्स ऑफ y by x फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड में रहेगा तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ दिस, एंड थर्ड में रहेगा तो पाई प्लस, एंड फोर्थ में रहेगा तो 2 पाई माइनस। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। फाइन, एंड देन गलती से क्या हो गया, जूम वाला क्लिक हुआ क्या, सो वी आर डूइंग दिस वन, बराबर है। तो उसको आगे करते हैं अभी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये आएगा फॉर्मूला पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाय x। सो y का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1, तो -1 अपॉन -1 कितना, 1। तो tan इनवर्स टेबल से आप कौन सा होता है, 45 डिग्री, दैट इज मतलब पाई प्लस पाई बाय 4। रेडियन में ढूंढो और बाद में डिग्री में कन्वर्ट करो। ये अगर आपने डायरेक्ट लिखना है तो आप पाई के बदले 180 लिख सकते हो, तो 180 प्लस 45, पाई के बदले आप 180 लिखा तो भी चलेगा। अगर डिग्री में आंसर चाहिए तो 180 प्लस 45, सो दैट इज हाउ मच, 180 प्लस 45, दैट इज 5 पाई बाय 4, दैट इज 225। समझे? सो 225 मतलब उसका पोलर कोऑर्डिनेट आएगा √2 225, मतलब उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज √2 है, एंड एंगल विद एक्स एक्सिस इज कितना है, 225। तो अगर आपको इससे उसको लोकेट करना है ग्राफ पे, तो आप उसको इस तरह लोकेट कर सकते हो कि ये जो पॉइंट है ना वो √2 एंड 225 डिग्री, तो यहां से 225 डिग्री किधर जाएगा, यहां से 0 90 180 एंड देन 270, दोनों के बीच में परफेक्ट इधर, एंड दोनों एक डिस्टेंस कितना है, √2। तो ये पॉइंट रहेगा ओरिजिन से √2 की दूरी, और यहां से 225। आई बात समझ में? सो दैट इज कॉल्ड एज अ पोलर कोऑर्डिनेट। एंड कार्टेशियन में हम x और y से हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, और पोलर पे हम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पोलर कोऑर्डिनेट। अंडरस्टूड?